Good evening, guys. Welcome to day 15. In this day 15, we are going to cover Python list. Okay, so today we will see what is list and its properties, how to create list, accessing elements from the list by using indexing and slicing, mutability, traversing a list, built-in methods, aliasing versus cloning, operators on list. Okay, so we already discussed introduction of list. Okay, so list hota kaise hai? List is actually enclosed within brackets. This is called brackets. Okay, and elements inside lists are comma separated, 1 comma 2 comma 3 comma 4, or list can be a comma b comma c comma d. स्ट्रिंग में भी हो सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर वाले, मल्टीपल कैरेक्टर वाले, या फिर आपका लिस्ट हो सकता है 3.142 9.8, ओके 6.3. सो ये इंटीजर वाला लिस्ट, ये स्ट्रिंग वाला लिस्ट, ये फ्लोट वाला लिस्ट, और you can have a list of all data types. We can say 100, it is integer. Then we can say Python, it is a string. And yes, then after we can say 4.98, it is your float. Then after we can have boolean true. Okay, so it is हेट्रोजीनियस मतलब क्या है कि अगर लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस लिस्ट. दिस इज होमोजीनियस. होमोजीनियस क्यों बोलते इसको? यस, होमोजीनियस क्यों बोलते? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर सिमिलर, सभी इंटीजर है, यहाँ पर सभी स्ट्रिंग है, ये होमोजीनियस हो गया. ऑल एलिमेंट्स आर इन फ्लोट, so ये भी homogeneous हो गया. And this is heterogeneous, means the list contains different data types. Okay, let's see the properties of list. Okay, so after that operators on list, we can see comparing and membership checks and nested list comprehension, and some mini practice sessions. What is a list? List, think it's like a shopping basket. Okay, so in that basket you can add your things and you can remove your thing. Correct? आप अगर डीमार्ट में जाते हो या फिर रिलायंस में जाते हो तो वहां पर आपको एक बास्केट देते हैं. यस. ओके, हियर आई विल शो यू द बास्केट. ओके, इस बास्केट से आप क्या करते हो? यहाँ पर दो. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, so here we have a basket, shopping basket. In this shopping basket, we can add things, okay, and we can remove things from this basket. Yes or no? So it is list. Think your basket is a list. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से. क्या आप लोग इसमें डुप्लीकेट आइटम्स ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मतलब इफ यू आर टेकिंग ऑयल पैकेट्स, सो क्या आप एक ही ऑयल पैकेट्स ले सकते हो इसमें, या फिर यू कैन टेक मल्टीपल, 4 ऑयल पैकेट्स या 5 ऑयल पैकेट्स? बोलो मुझे. डुप्लीकेट, यस, डुप्लीकेट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो या नहीं? 1 ऑयल पैकेट, सेकंड ऑयल पैकेट, सेम सेम ब्रांड का आपको पसंद आया तो आप 4 आइटम्स ले लेते हो, या एनी बिस्किट पैकेट्स. ओके, सो 10 बिस्किट पैकेट्स, इसका मतलब क्या है? डुप्लीकेट है या नहीं है बिस्किट पैकेट्स? So list is also similar. Okay, so list can be, okay, list is, yes, list can be means elements inside list can be duplicate. So you can drop items into in any order, keep duplicate 2 packets of milk, and add or remove items from wherever you are taking. Okay, so insertion order is preserved, means suppose if I have a list and I am adding elements like 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Okay, so first I have inserted 1, then I have inserted 2, then I have inserted 3, then I have inserted 4, then I have inserted 5. Means it will keep insertion order as it is. That is called insertion order is preserved. Duplicate items are allowed. Means what? Suppose here I have 100. Yes, this is possible. No problem. So duplicate items are
allowed can hold different data types together. Heterogeneous means what? Yes, यहाँ पर आप जो भी शॉपिंग के लिए जाते हो, यहाँ पर आपके बास्केट के अंदर होमोजीनियस एलिमेंट्स रहते हैं या हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, मतलब थिंग्स, इसके अंदर आप क्या क्या, मतलब मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, एनी आइटम्स, आइटम्स कैन बी फूड, फूड आइटम्स, आइटम्स कैन बी क्लॉथ या फिर जो भी किचन क्लॉथ या फिर डोरमैट, एनीथिंग। अगेन योर आइटम्स कैन बी एनी काइंड, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, सोप्स, ओके, यस, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, वो मतलब ऐड कर सकते हो। इसका मतलब आपका जब भी लिस्ट होता है ना, लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आप ऐड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आप परचेस कर रहे हो, तो लिस्ट इज ऑल्सो लाइक दैट। सो यहाँ पर आप कुछ 100 लिख रहे हो, यहाँ पर कुछ जावा स्ट्रिंग है, यहाँ पर आपका बुलियन एलिमेंट है, बुलियन व्हाट वी कैन से एलिमेंट, ट्रू। सो लिस्ट इज heterogeneous, list can have duplicate elements, okay, and insertion order is preserved। जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं वैसे वो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है। सो देन आफ्टर दैट, डायनामिक इन साइज, grows or shrinks as needed means आज मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, यस, आफ्टर सम टाइम आई कैन ऐड 3 more elements, आफ्टर सम टाइम आई कैन ऐड 4 elements, आफ्टर सम टाइम्स आई कैन ऐड 10 elements। इट इज डायनामिक, मतलब इसको एक बार क्रिएट किया ना तो इसका साइज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मतलब अभी 3 एलिमेंट्स है, इसका मैं इसमें 7 एलिमेंट्स ऐड भी कर सकता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 एलिमेंट्स वाला लिस्ट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स आई कैन डिलीट ऑल एलिमेंट्स, सो इट विल बिकम एम्प्टी, मतलब श्रिंक भी हो सकता है। ओके, ग्रोस और श्रिंक्स एज नीडेड। ओके, देन आफ्टर, written यूजिंग स्क्वेयर ब्रैकेट्स, स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम लोग, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है? यस, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, म्यूटेबल का मतलब क्या है? यस, वी कैन डू चेंजेस, चेंजेस आर अप्लीकेबल, चेंजेस, वी कैन डू चेंजेस। लिस्ट के अंदर हम लोग चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताओ। आज मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, कल मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब लिस्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कीपिंग दैट ऑब्जेक्ट एज इट इज, तो लिस्ट इज म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय इम्यूटेबल? इम्यूटेबल मीन्स नो चेंजेस। नो चेंजेस मतलब एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको, उस ऑब्जेक्ट को छेड़खानी नहीं कर सकते हो, उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर मैंने str1 इक्वल्स टू, यहाँ पर बोला मैंने आई लव पाइथन, ओके, दिस इज माई स्ट्रिंग। अगर मैंने यहाँ पर str1 डॉट रिप्लेस, रिप्लेस मेथड अप्लाई किया मैंने यहाँ पर पाइथन विथ जावा, और उसको str1 में स्टोर किया मैंने, str1 के अंदर ही स्टोर किया मैंने, तो अभी नया जो str1 आएगा वो क्या आएगा? आई लव जावा, करेक्ट। इसका मतलब मेरा str1 चेंज हुआ है क्या? इसका मतलब मेरा str चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ है मेरा। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि str1 जो पहले मेरा ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर आई लव पाइथन था, ठीक है, उसको रिप्लेस करके मैंने सेव किया str1 में, तो नया मेरा स्ट्रिंग क्या बना? आई लव जावा। तो वो क्या करता है, str1 आई लव पाइथन को वो ब्रेक कर देता है रेफरेंस, और नया रेफरेंस से वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें आई लव जावा आता है, करेक्ट? यस और नो? अभी मुझे बताओ, पहले str1 का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है, मतलब वो ब्रेक हो गया, चले गया। अभी str1 कौन सा है मेरा? आई लव जावा। मीन्स दोनों का आईडी सेम है क्या? बताओ मुझे, दोनों का आईडी सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका मतलब ये चेंज हुआ है क्या? str1 एक बार मैंने क्रिएट किया आई लव पाइथन, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसको ब्रेक करके आप नया स्ट्रिंग बना सकते हो। दिस इज इम्यूटेबल। सो टेल मी, आप जब भी शॉपिंग जाते हो तो शॉपिंग बास्केट के अंदर आपको जो पसंद आए पहले आपने इंसर्ट कर दिया, और छोटे किड्स रहते हैं, वो किड्स क्या करते हैं? ओके, जस्ट मिनट हियर, ये शॉपिंग कार्ट का जो बास्केट है इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स, मतलब जो चीजें है हमको पसंद है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। इसमें छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके जो पसंद आए हमें पता नहीं रहता है, तो वो कुछ
बिस्किट पैकेट्स या टॉयज जो अननेसेसरी जो भी रहते वो भी ऐड कर देते। बिलिंग टाइम के अंदर, बिलिंग बिलिंग के टाइम पे हम लोग वो देख लेते हैं कि वो, या ये जो चीजें हमें जरूरत नहीं है, सो ये निकाल देते हैं हम लोग, यस और नो। इसका मतलब हम लोग जो ऐड किया है वो हम लोग रिमूव भी कर सकते, बट बास्केट तो वही है ना मेरा। सो दिस इज कॉल्ड म्यूटेबल। सो वी कैन ऐड और वी कैन डिलीट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन इनसाइड द लिस्ट। ओके, लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एक बार क्रिएट करने के बाद वो चेंजेस कर सकते। आया समझ में? लिस्ट लिस्ट समझ में आया आपको? हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। सो हियर ये मेरा शिपिंग कार्ट नाम का मेरा वेरिएबल है, उसमें मैंने ये क्या किया, एम्प्टी लिस्ट मैंने असाइन किया है। एम्प्टी लिस्ट ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया और इसको रन किया मैंने। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ रहेगा क्या, प्रिंट शिपिंग कार्ट नाम का मेरा शिपिंग अंडरस्कोर कार्ट नाम का वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, दिस इज एम्प्टी लिस्ट। एंड इफ यू सी टाइप ऑफ शिपिंग कार्ट क्या है, क्लास लिस्ट। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्ट के अंदर मैं अभी शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट का जो लिस्ट है वो अभी एम्प्टी है, मैं इसके अंदर कुछ ऐड करता हूँ। सो आई विल ऐड मिल्क। चलो बताओ मुझे, चार पांच ऐसे कुछ जो चीजें हैं हम लोग डीमार्ट से खरीदते हैं या फिर रिलायंस से खरीद सकते हैं या फिर कहीं पे भी, वैसे चार से पांच मुझे वस्तु ये बताओ। मिल्क, ब्रेड, सॉल्ट, ओके, टूथपेस्ट और संतूर, और लास्ट वन बोलो, नोटबुक। मान लो कोई नोटबुक आप ले रहे हो। सो दिस इज व्हाट माय लिस्ट। अभी मैंने लिस्ट क्रिएट किया है। ओके, ये लिस्ट क्रिएट किया है एंड आई वांट टू प्रिंट दैट लिस्ट। तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट के अंदर शॉपिंग कार्ट, मिल्क, ब्रेड, salt, toothpaste, संतूर, notebook. Okay, so letting the shopper type items in dynamic input मतलब क्या, डायनामिक इनपुट मतलब मैं ये इवेल इनपुट जो है ना, मैं आगे भी बताने वाला हूँ, बट इनपुट क्या कर रहा है, मेरा यूजर कीबोर्ड से एंटर कर रहा है। ठीक है, और इवेल क्या कर रहा है, इवेल ऑटोमेटिक ये इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, मैं सिंबल दूंगा उसको। ठीक है, अभी इसको मैं शिफ्ट एंटर किया और अभी मैं लिस्ट, एवेल क्या करता है, यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूं मैं, तो वो एज इट इज लिस्ट के जैसा वो कन्वर्ट करेगा। सो आई विल टेल राइस कॉमा टी, अच्छा इसको स्ट्रिंग में दे देंगे, शुगर, ये बाद में भी देखने वाले हम लोग। एंटर। इफ यू प्रिंट शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट, ये क्या है, मेरा लिस्ट है। सो इसको रन करो, राइस, टी, शुगर। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट, व्हाट इज द टाइप, टाइप क्या है इस शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट का, कौन से टाइप का है ये टपल है या डिक्शनरी है या ये स्ट्रिंग है या क्या है ये, व्हाट इज दिस। ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स दिया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करेक्ट, क्लास लिस्ट आएगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पर रेंज, रेंज से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। रेंज के अंदर हम लोग तीन चीजें देते हैं। रेंज रेंज के अंदर हम लोग तीन चीजें देते हैं, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। जो मैंने स्ट्रिंग के स्लाइसिंग के टाइम पे बताया वही यहाँ पर अगर मैंने बताया आपको रेंज 1, 10, 2 का मतलब क्या है बताओ। 1 इज इंक्लूडेड और नॉट, 1 इज इंक्लूडेड, 1 आएगा। 10 इज इंक्लूडेड और नॉट, नो इट इज एक्सक्लूडेड, मतलब ये 9 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1 to 9 तक जाएगा। 1 to 9 तक ये सीक्वेंस देगा, बट उसमें ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर स्टेप 2 है। स्टेप 2 का मतलब क्या है, कितने एलिमेंट्स आपको स्किप करना है, कितने नंबर्स आपको स्किप करना है। 2 - 1 इज 1, 1 नंबर। सो इसका आंसर आएगा 1। ये 2 स्किप कर देगा, 3, 4 स्किप कर देगा, 5, 6 स्किप कर देगा, 7, 8 स्किप कर देगा, 9। 1, 3, 5, 7, 9, और उसको मैं लिस्ट के अंदर दे रहा हूँ। लिस्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टाइप कास्टिंग। जो भी मेरा रेंज का सीक्वेंस है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो सेल डेज इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं सेल डेज को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट सेल डेट्स, सॉरी डेज, 1, 3, 5, 7, 9 लाइकवाइज। ओके, सो टाइप ऑफ सेल डेज इज लिस्ट। ओके, अभी कोई स्ट्रिंग है, टर्निंग टेक्स्ट इनटू अ लिस्ट, लिस्ट है यहाँ पर, मान लो कुछ भूषण, ठीक है, BHUSHAN, भूषण, एंड आई एम स्टोरिंग दैट भूषण स्ट्रिंग इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड वर्ड। सो अगर मैंने उस वर्ड को लिस्ट के अंदर पास किया, लिस्ट के अंदर मैंने उसको पास किया,
WORD क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। हर एक कैरेक्टर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। B, एक HUSHAN, ये सब स्प्लिट हो जाएंगे और एक लिस्ट में आ जाएंगे। BHUSHAN, इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। वर्ड इज माई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैंने लिस्ट के पैरेंथेसिस के अंदर दिया, मतलब ये टाइप कास्ट कर रहा है। ओके, सो उसको यहाँ पर टाइप कास्ट लेटर्स में मैंने स्टोर किया, और प्रिंट लेटर्स बोल रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा। सो यू कैन यूज स्प्लिट ऑल्सो। हम लोगों ने स्प्लिट देखा था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो था हमारे पास स्ट्रिंग। यस और नो। एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं, ठीक है, सेंटेंस, ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग है अभी। अभी इसके मैं अभी स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, हर एक वर्ड को मुझे लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, एलिमेंट्स मतलब वर्ड्स, 1 2, ये तो स्ट्रिंग एक ही है। एक स्ट्रिंग के अंदर, एक एंटायर स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स है वो बताओ मुझे। इंडिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, तो मेरा लिस्ट कैसे आना चाहिए, पहले आना चाहिए यहाँ पर इंडिया, ठीक है, इज बाद में, माई बाद में, कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर आखिरी में क्या आएगा, सिस्टर्स। ऐसे मुझे करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये तो स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग का मेथड बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम। स्ट्रिंग का मेथड क्या है, स्प्लिट, कुछ नहीं, आपको सिंपल ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस लिखना है, वो वेरिएबल SEN, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ पहले। सेंटेंस, SEN टैब प्रेस करो, वो सेंटेंस का यहाँ पर आपको आ जाएगा। सेंटेंस डॉट स्प्लिट, ये स्प्लिट किसका मेथड है बताओ, स्प्लिट ये जो मेथड है ये किसका मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है। ये तो स्ट्रिंग के ऊपर ही चलेगा, क्योंकि मेरा सेंटेंस क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, हाँ अभी क्या करेगा, ये स्प्लिट करता है बाय डिफॉल्ट यूजिंग स्पेस, करेक्ट। अभी मैं इसको रन करूंगा तो एक लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट के अंदर हर एक वर्ड अपना अपना इंडिविजुअल वर्ड बनेगा, स्प्लिट हो जाएंगे ये। सो सी हियर, अभी मैं इसको प्रिंट के अंदर लिखूंगा ना, PRINT प्रिंट, PRINT प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखूंगा ना। सो देखो, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आया समझ में आप लोगों को, सिंपल है। अगर इसको आपको किसी लिस्ट के अंदर स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो, कैसे, ये वाला सेंटेंस डॉट स्प्लिट, सेंटेंस डॉट स्प्लिट, ये मैं इसको लिस्ट अंडरस्कोर वर्ड्स में मैं स्टोर कर रहा हूँ। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वर्ड्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वर्ड्स, लिस्ट रहेगा, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, टाइप ऑफ TYPE, टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वर्ड्स, इट इज लिस्ट। आया क्या समझ में आपको, गुड टू नो। A list can even contain another list inside it, that's called nested list। bread, milk, eggs, butter, लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकता है, और हम लोग देखेंगे, सेपरेट टॉपिक है, इसी नोटबुक में वो एंड में रहेगा। सो हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट्स इनसाइड फ्रॉम अ लिस्ट, सो बाय इंडेक्स। अभी मेरे पास ना एक सॉन्ग्स की लिस्ट है। सो माय प्लेलिस्ट इज माय वेरिएबल, एंड हियर सॉन्ग्स आर केसरिया, तुम ही हो, अपना बना ले, कल हो ना हो। ओके, सो जैसे हमारे स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स होता था, लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स होता है, गॉट इट। पहला वाला जो रहेगा उसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0, उसका इंडेक्स 1 2 3, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट एंड पॉजिटिव इंडेक्स या पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इसका रहता है -1 -2 -3 -4, and this direction is called right to left and negative indexing। आया समझ में आप लोगों को, it this concept, indexing concept is already seen in string slicing and string इंडेक्सिंग में, आप लोगों ने देखा है, राइट। किसी को डाउट है कि इसमें, मैं क्या करता हूँ, इसको, इस लिस्ट को यहाँ पर ना, ये मेरा लिस्ट है। सो हियर आई हैव इंडेक्सिंग, राइट। सो ठीक है, मैं यहाँ पर इससे ले लूँ, दिस इज 0,
इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए क्या रहेगा ये? -1, -2, -3 एंड -4। ओके, सो ये सब अभी मैं इनको मिडल में लेता हूँ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग, थोड़ा सा मैं, एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेक्सिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, everyone? Okay, so here what is this? Which indexing this is? Positive indexing, left to right. This is called negative indexing, negative indexing, right to left। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर मैं अभी आपको मेरा प्लेलिस्ट और मैं आपको नंबर बताऊंगा, वो कौन सा सॉन्ग रहेगा वो बताना आप लोग। यस, प्लेलिस्ट ब्रैकेट के अंदर मैंने जीरो बोला, विच सॉन्ग? जीरो। आर यू देयर गाइस? केसरिया, करेक्ट। एंड इसको मैं रन करना है, केसरिया। एंड व्हाट इफ आई से प्लेलिस्ट ऑफ -1? -1 इंडेक्स किस सॉन्ग का है, किस एलिमेंट का है? कल होना हो, दैट्स सिंपल। मतलब अगर लिस्ट ले रहे हो आप, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है XY Z P, तो यहाँ से 0 1 2 3, ये पॉजिटिव वन, जीरो से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर -1 -2, सिंपल है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ, आया समझ में? सो नेक्स्ट, प्ले लिस्ट ऑफ, अगर मैंने यहाँ पर बोला टू, तो क्या आएगा? टू बोला तो क्या आएगा? और प्लेलिस्ट ऑफ मैंने कुछ वन बोला, तो उस इंडेक्स पे जो भी रहेंगे वो सॉन्ग्स आएंगे। अपना बना ले, तुम ही हो, लाइकवाइज। ओके, अगर प्लेलिस्ट में वो नंबर नहीं है, इंडेक्स नहीं है, तो वो एरर आएगा, इंडेक्स एरर आएगा वो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है प्लेलिस्ट। छैया छैया, तुझ में रब दिखता है, दिल दिया, गला, जिंदा। ओके, जीरो लिया तो जीरो इंडेक्स वाला छैया छैया, एंड -1 लिया तो लास्ट वाला जिंदा। ओके, सो बाय स्लाइस ऑपरेटर, यस वी कैन डू स्लाइसिंग। अभी देखो, मैं स्लाइसिंग यहाँ पर बताता हूँ। इसके लिए क्या मुझे इसका इंडेक्स बता सकते हो? मंडे का, मन वीकडेज नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स में दिया है मैंने। सो क्या बता सकते हो इसके इंडाइसेस क्या होंगे? मंडे का इंडेक्स क्या रहेगा? दो इंडेक्स रहेंगे, मंडे के इंडेक्स दो रहेंगे। ठीक है, पहले जीरो से लेके मैं पॉजिटिव इंडेक्स बना लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6, एंड देन नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स कैसे रहेंगे? नेगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अच्छा, स्लाइसिंग कैसे होता है? स्लाइसिंग के अंदर आपका होता है स्टार्ट, स्टार्ट कोलन, स्टॉप कोलन, स्टेप। अगर आपने स्ट्रिंग्स का स्लाइसिंग देखा होगा और आपको आता है, तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब सेम है। स्टार्ट अगर मैंने बोला 1:5, मतलब यहाँ पर मैंने स्टेप दिया नहीं है। 1:5 मतलब स्टेप नहीं दिया, मतलब डिफॉल्ट वन रहता है। अच्छा, ये वन स्टार्टिंग है तो इंक्लूडेड रहता है वन। ये इंक्लूडेड है क्या? 5 नहीं है, एक्सक्लूडेड रहता है, इसलिए 4 तक जाएगा। सो यू हैव टू सी इंडेक्स 1 to 4, इंडेक्स 1 to 4, इंडेक्स 1 to 4 कौन सा है? इंडेक्स 1 to 4, मतलब ये वाले आएंगे। अच्छा, इसमें स्किप करना है या नहीं है वो कौन बताएगा आपको? स्टेप बताएगा। स्टेप अगर नहीं दिया है, मतलब डिफॉल्ट वन रहता है, तो डू नॉट स्किप, मतलब आपका आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। आ रहा है क्या समझ में आपको? यस, आ रहा है क्या? हाँ, तो अभी इसका क्या आएगा आंसर? 1 to 5 का आंसर क्या आएगा? यहाँ पर मैंने लिखा है, सॉरी, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इसको। 1 to 4 मतलब ये 0 1 2 3 4, ट्यूसडे टू फ्राइडे, जस्ट आई हैव टू रन अबाउ सेल, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अच्छा, ये कोलन मतलब ये डिफॉल्ट वैल्यू, मैं मतलब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये आखिरी में हम लोग देखेंगे इसको। डिफॉल्ट स्लाइसिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास स्टार्ट है, ठीक है, आपके पास क्या क्या है? स्टार्ट है, स्लाइसिंग के अंदर कंपलसरी आपको ये तीनों देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, देर इज नो रूल कि देना ही चाहिए। सो कभी कभी आपका स्टार्ट नहीं देंगे, आपको स्टॉप भी नहीं देंगे, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? डिफॉल्ट वैल्यू विल बी, फर्स्ट हियर स्टेप विल बी वन। स्टेप अगर वन है तो ये लेफ्ट टू राइट रहेगा, लेफ्ट टू राइट का स्टार्ट 0, एंड लेंथ ऑफ दिस
लिस्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट कितना है यहाँ पर, देखो लेंथ ऑफ द लिस्ट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये 7 तक, मतलब 0 to 6 तक रहेगा। मतलब इसका इंडेक्स देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो जाएगा आपका 0:6:1 हो जाएगा। मतलब आपने कुछ भी नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब 0:6:1 होता है। मतलब एंटायर लिस्ट आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, एंटायर लिस्ट। इफ नथिंग इज गिवन मीन्स डिफॉल्ट स्टेप विल बी 1, डिफॉल्ट स्टार्ट विल बी 1 एंड डिफॉल्ट एंड विल बी 7, मतलब वो 6 तक जाएगा। ये ऐसे नहीं लिखना है, इसको 7 लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला एंटायर लिस्ट, ये वाला भी एंटायर लिस्ट आएगा। सो इफ आई प्रिंट दिस एंटायर लिस्ट, ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी इसका आंसर ना आपको देना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हो क्या, :3 दिया है, इसका मतलब इसमें क्या क्या मिसिंग है, मिसिंग क्या क्या है, यहाँ पर स्टार्ट मिसिंग है, यस और नो, और यहाँ पर एंड मिसिंग है, मतलब स्टेप, एंड नहीं स्टेप, सॉरी, तीन चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो आपके पास ओनली :3 है, इसका मतलब क्या है, आपका डिफॉल्ट स्टार्ट रहेगा और डिफॉल्ट स्टेप रहेगा। डिफॉल्ट स्टेप कितना रहता है, 1 रहता है, मतलब डिफॉल्ट स्टेप अगर 1 है तो स्टार्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था स्ट्रिंग्स के अंदर। सो 0 to 3, 0 to 3 का मतलब क्या है, वो 3 तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0 1 2 तक ही, मतलब ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, मतलब यही स्ट्रिंग आएगा, कितना आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यू विल गेट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अच्छा, अभी एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर :5 का मतलब क्या है, 5 तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 तक ही जाएगा, बट डिफॉल्ट कितना है, स्टार्ट 0, डिफॉल्ट स्टार्ट इज 0, 5 तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0 to 4 तक ही रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यस फ्राइडे तक आएगा, फ्राइडे तक। यहाँ पर आपका :-1 है, :-1 है, इसका मतलब आपका ये :-1 क्या, क्या है क्या, वो :-1 का मतलब क्या है, ये क्या आपका स्टॉप है या स्टेप है या क्या है, क्या ये, यहाँ पर मैंने इसमें देख रहा हूँ, इसमें मेरे पास ओनली एक ही मतलब चीज है जो -1 है, उसके लेफ्ट साइड में कोलन मतलब क्या है, यहाँ पर स्टार्ट रहेगा, ये आपका स्टॉप रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर स्टेप क्या रहेगा, 1 रहेगा। अच्छा, मेरा ये जो स्टॉप है -1 है, मतलब यहाँ पर स्टेप तो मैंने दिया ही नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये क्या रहेगा, 0, 0:-1 का मतलब क्या है, यस 0:-1 का मतलब क्या है, क्या आएगा, कोई बताएगा आंसर मुझे। देखो समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा फिर से, क्योंकि बहुत जबरदस्त है ये टॉपिक, बहुत इजी भी है। देखो, अगर मैंने सिर्फ एक ही बोला तो वो इंडेक्स होता है, करेक्ट। अगर मैंने वीक डेज के अंदर ओनली -1 लिखा तो ये इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। मुझे बताओ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मैं वीकडेज को प्रिंट करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसिंग, इफ यू प्रिंट वीकडेज, ये मेरा लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर अगर मैंने सिर्फ -1 दिया, मतलब वो सिंगल इंडेक्स दिया, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं हम लोग, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, आखिरी का संडे। बट आप लिस्ट के अंदर कोलन दिख गया तो स्लाइसिंग, स्लाइसिंग मतलब एक से ज्यादा आता है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या फिर वेडनेसडे फ्राइडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो भी है वो स्लाइसिंग होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर क्या कौन सा यहाँ पर मिसिंग है, स्टार्ट मिसिंग है, यहाँ पर दिया है, मतलब देखो हमेशा एक ध्यान में रखना, अगर स्टेप दिया है, थर्ड वाला अगर स्टेप है, स्टेप तो ही उसको स्टेप कंसीडर करना, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप रहेगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा, इसका मुझे अभी बताओ आप लोग कि :-1 यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर डिफॉल्ट क्या आएगा, यहाँ पर डिफॉल्ट क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब डिफॉल्ट 1 है, और डिफॉल्ट 1 है तो ये लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट का स्टार्ट क्या रहता है, 0 रहता है। सो 0 से लेके -1 तक, 0 से लेकर -1, 0 इधर है, -1 है इधर, -1 का इक्विवेलेंट क्या है, 6 है,
इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग आएगा, सॉरी लिस्ट के एलिमेंट्स आएंगे, पूरा का पूरा लिस्ट आएगा। ये आया, -1 वाला नहीं आएगा, माय बैड। मतलब यहाँ पर मैंने जो इंक्लूडिंग वाला बताया ना, वो -1 वो इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सक्लूड रहता है आपका लास्ट एलिमेंट। ठीक है, सो दिस इज योर कोलन -1। सो -2 मतलब ये वाला -2, 0 से लेके -2, तो ये यहाँ तक ही रहेगा, वो -2 तक नहीं जाएगा। तो वो आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, डिफॉल्ट स्टॉप एक बता देता हूँ, बाकी का आप लोग प्रैक्टिस करो। ये शीट दे देता हूँ मैं आपको। डिफॉल्ट स्टॉप नहीं है तो ये एंड तक जाएगा। ठीक है, अभी मैं वीक डे को प्रिंट करता हूँ, वीक डेज को प्रिंट किया, ये वाला मेरा वीक डेज है, तो इसमें स्टॉप नहीं है, मतलब ये एंड तक रहेगा। लेंथ ऑफ द लिस्ट रहेगा। लेंथ ऑफ द लिस्ट कितना है? लेंथ ऑफ द लिस्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप एक काम करो, लेंथ ऑफ द लिस्ट यहाँ पर देख लो, LEN, लेंथ ऑफ वीकडेज, ये 7 देगा। मतलब ये 2:7, मतलब 2 से लेके 7 तक, 7 तक नहीं जाएगा, वो 6 तक जाएगा, मतलब संडे तक रहेगा वो। तो 2 कौन सा है? 0 1 2, 2 से लेकर पूरा, मतलब वेडनेसडे, वेडनेसडे से लेके पूरा आएगा ये। ओके, ये दो आपके लिए। सो यहाँ पर भी मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपका स्टेप, डिफॉल्ट स्टेप क्या रहता है? 1 रहता है, नहीं दिया तो 1। सो 1 to 5, 1 to 5 मतलब ये ट्यूसडे से लेकर 5 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वो 4 तक ही आएगा। 1 2 3 4, ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। अभी पॉजिटिव स्टेप है, मतलब ये इसका आंसर बता सकते हो मुझे? ::2 क्या है, मतलब क्या है इसका? इसमें क्या क्या मिसिंग है? करेक्ट, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट जाने वाला लिस्ट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने वाला स्टार्ट क्या है आपका? 0। लेफ्ट टू राइट जाने वाला स्टॉप क्या है आपका? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेफ्ट लेंथ ऑफ द लिस्ट, मतलब 0:7:2। मतलब अब ये स्टेप 2 है, 2 का मतलब कितने एलिमेंट स्किप करना है आपको? 2 - 1 1। 0 to 7 मतलब 0 to 6 तक रहेगा। ठीक है, 0 to 6 तक रहेगा, हर एक एलिमेंट वो स्किप करेगा। मतलब क्या आएगा आपका? क्या क्या आएगा? मंडे आएगा, ट्यूसडे स्किप, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे स्किप, फ्राइडे आएगा, सैटरडे स्किप, संडे आएगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे सॉरी। तो ये देखना अभी। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। तो ये बाकी के आपके प्रैक्टिस के लिए है। रिवर्स करना है, ::(-1). दिस इज योर रिवर्स। ओके, रिवर्स विथ स्टार्ट, मतलब 5 से स्टार्ट हो रहा है रिवर्स। ठीक है, मतलब मेरे पास जो लिस्ट है वो क्या लिस्ट है मेरी? ये वाला है। इसके अंदर मैंने क्या किया? 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। स्टार्ट हो रहा है 5 से, स्टार्ट 5 मतलब ये वाला स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, और एंड, अच्छा ये वाला कौन सा है आपका? -1 है, मतलब ये वाला डायरेक्शन है, मतलब 5 से लेकर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंड कहाँ तक रहेगा? माइनस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, माइनस लेंथ ऑफ द लिस्ट, और -1 मतलब -8 तक जाएगा। -8 तक मतलब क्या है कि आपका सैटरडे पहले प्रिंट करेगा, फिर बाद में फ्राइडे करेगा, थर्सडे करेगा, वेडनेसडे करेगा, ट्यूसडे करेगा, मंडे करेगा, सैटरडे टू मंडे रिवर्स ऑर्डर में आएगा, क्योंकि -1 है, राइट टू लेफ्ट आएगा, और 1 है, स्किप नहीं करना है, इसलिए ये भी आएगा, 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 रिवर्स विथ स्टॉप। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर तो मैंने लिख के रखा है, चलो बोलो क्या आएगा इसका आंसर, लॉजिक बताओ मुझे। यहाँ पर इसमें स्टॉप दिया है 2, -1 दिया है, स्टार्ट क्या रहेगा इसका? मंडे एंड ट्यूसडे। देखो अभी इसमें क्या है, ये तो -1 बोल रहा है, इसका मतलब स्टेप अगर नेगेटिव है, मतलब वो ये डायरेक्शन वाला आपको लिस्ट देगा, जो भी रहेगा इस डायरेक्शन वाला देगा। अच्छा, इसमें स्टार्ट कौन सा रहेगा? ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और नेगेटिव वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा, दो स्टार्ट रहते, दो स्टॉप रहते, करेक्ट। अगर आपका स्टेप नेगेटिव है, मतलब आपका स्टॉप क्या रहेगा और स्टार्ट क्या रहेगा, वो बताओ पहले मुझे। अगर नेगेटिव है स्टेप, स्टार्ट क्या रहेगा
और स्टॉप क्या रहेगा? नेगेटिव मतलब इधर से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? -1। इधर से एंड कौन सा हो रहा है? अभी जो भी आखिरी वाला रहता है ना, उसमें एक ऐड करके माइनस बना दो, मतलब -8। ये हो गया आपका स्टार्ट और स्टॉप। अगर नहीं दिया है तो ये इनमें से ले लेने का, अगर दिया है तो वेल एंड गुड। मुझे एक बात बताओ, इसमें से क्या नहीं दिया है वो इधर से ले लेने का। :2 -1। -1 का मतलब क्या है? मेरा लिस्ट कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब स्टार्ट -1 है, स्टॉप -8 है। बट इसमें क्या दिया है? इसमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है? स्टॉप ऑलरेडी दिया है, मतलब स्टॉप लेने की जरूरत नहीं है। स्टॉप ये है, स्टॉप मतलब कहाँ पर? ये वाला स्टॉप है मेरा। 2 इज माई स्टॉप। तो ये इसका स्टार्ट क्या रहेगा? व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ दिस? यस, मतलब -1 मेरा यहाँ पर होगा। एक्चुअली ये 2 जो है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब यहाँ तक ही रहेगा वो। ये वाला मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूड है, उससे पहले ही रुक जाएगा वो, मतलब यहाँ तक ही रुकेगा वो। मतलब 2 से पहले ही रुक गया, मतलब ये 3 इधर से रुक गया, मतलब ये 3 तक आएगा। ठीक है, -1 मतलब संडे आएगा, सैटरडे आएगा, फ्राइडे आएगा और थर्सडे आएगा। चलो देखते हैं हम। संडे आया पहले, फिर बाद में सैटरडे आया, फ्राइडे आया, थर्सडे आया। आया क्या समझ में आप लोगों को? क्या मुझे इन दोनों का आंसर बता सकते हो आप? इसमें क्या क्या नहीं दिया है वो बताओ मुझे। इसमें क्या नहीं दिया है और इसमें क्या नहीं दिया है? इसमें क्या नहीं दिया है वो तो छोड़ो, आंसर क्या आएगा इसका बताओ। :0 0 -1। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस स्लाइसिंग? अच्छा, कोई बता सकता है क्या ये स्लाइसिंग लेफ्ट साइड से आ रहा है कि राइट साइड से आ रहा है? राइट साइड से आ रहा है, करेक्ट। राइट साइड से, मतलब ऐसा है आपका, मतलब ये साइड से आ रहा है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट में इतना तो समझ में आएगा कि ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है -1। अच्छा, इसका स्टार्ट कितना है और स्टॉप कितना है वो बताओ। स्टार्ट क्या है और स्टॉप क्या है? अच्छा, ये राइट टू लेफ्ट अगर आता है ना, स्टार्ट क्या रहता है? अगर नहीं दिया है तो वो ले लेने का। स्टॉप राइट टू लेफ्ट में देखो, 2 स्टार्ट है, 2 एंड है। ज्यादा आपको मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ना एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन। अगर मैं इधर से आ रहा हूँ तो मेरा स्टार्टिंग वाला कोच कौन सा रहेगा? इधर से आ रहा हूँ मैं, वो डेमो कुछ ट्रेन है जो उनके दोनों साइड में कुछ इंजन रहते हैं, ऐसा कुछ। तो भी ये भी इंजन है, ये भी इंजन है, ठीक है। इधर से आ रहा हूँ तो ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा। इधर से आ रहा हूँ, ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अगर इधर से आ रहा हूँ, ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा स्टॉप है। अगर इधर से आ रहा हूँ तो ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा स्टॉप है। यस और नो? तो 0 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा वाला इंडेक्सिंग है? पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट वाला। इसमें ध्यान से बोलो मुझे, ध्यान से मतलब एकदम ध्यान से। इसका स्टार्ट क्या है बोलो मुझे, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? लेफ्ट टू राइट का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? इधर तो है यार, नहीं रे। 0 1 2 मैं ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे आ रहा हूँ, तो पहले मुझे क्या मिला? स्टार्ट क्या है? 0 स्टार्ट है मेरा, और स्टॉप जो है वो इसको तो इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड करेगा, तो 5 हो जाएगा। इससे अच्छा एक ज्यादा बोल दो, मतलब 7। आया समझ में? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे आ रहा हूं मैं। कैसे आ रहा हूं मैं? राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ। राइट टू लेफ्ट जब भी आ रहा हूं मैं, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5, -6 और -7। आपको ये भूल जाना है, अभी 0 1 2 3 भूल जाना है। अभी बताओ मुझे स्टार्ट क्या है? स्टार्ट और स्टॉप क्या है? स्टार्ट क्या है आपका? स्टार्ट इधर से आए आप ऐसे आ रहे हैं ना, राइट टू लेफ्ट। स्टार्ट क्या है? इस डायरेक्शन से आपको स्टार्टिंग क्या मिला? स्टार्ट कौन सा मिला आपको? -1। और एंड क्या है आपका? स्टॉप -8। एक ज्यादा बोल देने का, इतना ही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। हाँ, सो कमिंग टू दिस, -1 से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये -1 है, मतलब ये डायरेक्शन में का मेरा स्लाइसिंग है। और स्किप एक भी नहीं करना है, 0 तक जाना है, मतलब ये वाला यहाँ तक आएगा क्या? ये नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, मतलब ये वाला मुझे लिस्ट मिलेगा। संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे गॉट इट। सो रिवर्स विथ स्टेप, मतलब रिवर्स स्किपिंग वन, हर एक एलिमेंट एक स्किप करेगा और रिवर्स में ऐसे, मतलब संडे आएगा पहले, ठीक है, सैटरडे को स्किप करेगा, फ्राइडे आएगा, थर्सडे को स्किप करेगा, वेडनेसडे आएगा, ट्यूसडे को स्किप करेगा, मंडे कोलन कोलन -2। ओके, सो हियर आई विल स्टॉप, टुमारो वी विल सी फ्रॉम
लिस्ट आर म्यूटेबल, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे।